أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. سوال یہ ہے کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ہم نے آیت نمبر 165 میں پڑھا تھا کہ ایمان والے جو ہوتے ہیں محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے. ایمان والوں کی محبت سب سے زیادہ یا اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ وہ شدید ہوتے ہیں. تو ایمان والوں کی محبت اللہ سے کس طرح سے سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں؟ اور وہ کس طرح سے ہے کہ اللہ کو پہچان کر اس کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے، قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچان کر، جو کائنات میں بکھری ہوئی ہیں قدرت کی نشانیاں، ان کو پہچان کر ان پر غور و فکر کر اللہ کی ان پر غور و فکر کرنے سے اللہ کی معرفت یا اس کے بنانے والے کی معرفت پیدا ہوتی ہے. اللہ کی بنائی ہوئی نشانیوں پر غور و فکر کرنے سے اس کے بنانے والے سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنے بنانے والے کو پہچان کر اپنے بنانے والے کو پہچان کر اس کی محبت سب سے زیادہ اس سے شدید ہو جاتی ہے کہ میرا بنانے والا اس قدر قوت اور طاقت رکھتا ہے، یا اتنا بڑا یا اتنا عظیم ہے. تو قدرت کی نشانیاں جو ہیں اس کے اندر بنانے والے کی قدر و قیمت اور ویلیو پیدا کرتی ہیں. قدرت کی نشانیاں انسان کے اندر ان سب چیزوں کو بنانے والے کی ویلیو اور اس کی عزت اور اس کی قدر پیدا کرتی ہیں. اور جب انسان اپنے بنانے والے کی طاقت کو، قدرت کو، عظمت کو، بڑائی کو پہچان لیتا ہے، جب انسان اپنے بنانے والے کی قدرت، عظمت، بڑائی، کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، کتنا عظمت ہے اس کی، تو پھر اس کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہو جاتی ہے، اپنے پیدا کرنے والے سے ہو جاتی ہے. پھر اس کی محبت ہر چیز سے زیادہ اپنے پیدا کرنے والے سے ہو جاتی ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو سب سے زیادہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. یعنی ان لوگوں کو ایمان والے کہا گیا ہے جو اپنے کائنات کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، ایمان لا کر اس مالک کو پہچانتے ہیں، اس کی قدر و قیمت کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ اس کو پہچان لیتے ہیں پھر وہ ہر چیز سے زیادہ اس کی محبت ان کے دل میں سما جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کی محبت میں اتنے شدید تھے کہ اپنی جان، مال، اولاد، گھر بار، ہر چیز کو انہوں نے اللہ کے لیے قربان کر دیا. اور جب تک انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا نہیں، اس کے دل میں اس کی ایسی عظمت، بڑائی نہیں بیٹھ سکتی. جب تک ہم اپنے مالک کو پہچانتے نہیں کہ مجھے پیدا کرنے والا کتنا بڑا ہے، اس نے کیا کیا بنایا ہے، جب تک ہم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانیں گے نہیں، ہمارے دل میں اس کی بڑائی، عظمت نہیں آ سکتی، اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے مطابق عمل کر سکتے ہیں. عمل کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کی ہمارے اندر بڑائی ہو، ہمیں پتہ ہو کہ وہ کون ہے، اس لیے ہمیں عمل کرنا بھی مشکل نظر آتا ہے. اور جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت شدید پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے دل سے بے چینی نکل جاتی ہے. جب انسان کی محبت ہر چیز سے زیادہ اللہ سے ہو جائے پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو کوئی گلہ شکوہ انسانوں سے، نہ اپنے آپ سے، نہ حالات سے، کسی طرح کا اس کے اندر نہیں. نیگیٹیوٹی اس سے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، پازیٹیوٹی ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے حکم سے ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا. تو یہ چیز اس کو اللہ پر
اللہ کی شدید محبت، اور اللہ تعالیٰ کی جب محبت اس کے دل میں سما جاتی ہے پھر اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ گھبراتا نہیں، غم زدہ نہیں رہتا، اداس نہیں رہتا، غم اور تکلیفوں میں نہیں رہتا، بلکہ وہ ہر طرح کی نیگیٹیوٹی اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ اور ایک دوسری چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت، انسان اللہ کی جب قوت اور طاقت کو دیکھ لے گا تو پھر اس کو یہ چیز بہت حسرت کرے گی کہ دنیا میں جن لوگوں کو یا جن چیزوں کو میں نے قوت اور طاقت کا مالک سمجھا تھا، میرے مددگار سمجھا تھا، وہ تو میرے آج کچھ بھی کام نہیں آ سکے۔ جو لوگ اللہ کی قوت اور طاقت کو، قدرت کو دنیا میں نہیں پہچانتے اور شرک کر رہے ہیں، غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو وہ لوگ اس دن بہت افسوس کریں گے کہ کاش ہم اللہ کی قدرت کو پہچان لیتے۔ آج تو کسی کی بھی طاقت نہیں ہے یہاں پر، نہ کوئی پیر، نہ مرشد، نہ ولی، نہ کوئی سیانہ، کچھ بھی نہیں، اس کی کوئی طاقت ہی نہیں ہے آج۔ کاش ہم دنیا میں اللہ کی طاقت کو پہچان لیتے، جن کے پیچھے ہم دنیا میں جن کو بڑا سمجھ کر پوچھتے تھے، ان کے پیچھے پھرتے تھے، ان کا پانی بھرتے تھے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے، یا جن کو ہم اللہ کے برابر سمجھتے تھے، ان کی بات بھی ایسے ہی مانتے تھے جیسے اللہ کی ماننی چاہیے، تو اس دن انسان کو افسوس ہوگا کہ آج صرف اور صرف ساری قوت اللہ کی ہے، ساری طاقت اللہ کی ہے، کوئی پیر فقیر کوئی وہاں پر کھڑا نہیں ہوگا۔ یعنی شرک کرنے والوں کو کس قدر افسوس ہوگا اس دن، جو اللہ کے برابر دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ اور ایک تیسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ جب تک انسان کو توحید پتہ نہیں چلے گی کہ توحید کس کو کہتے ہیں، جب تک توحید کی پہچان نہیں ہوگی، اس کے اندر سے شرک نکلنا بہت مشکل ہے۔ توحید کی پہچان کے بغیر شرک نہیں نکل سکتا، توحید کی پہچان ہونی بہت ضروری ہے۔ توحید کیا ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر شرک زندگیوں سے نہیں نکل سکتا، توحید کے بغیر شرک نہیں نکل سکتا۔ جب تک آپ کو توحید ہی پتہ نہیں، کیسے عمل کریں گے، کیسے شرک چھوڑیں گے، شرک نہیں پتہ چل سکتا۔ اور توحید کی سب سے بہترین پہچان ہوتی ہے قرآن کے ذریعے سے، توحید کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ تو توحید کی پہچان خود اللہ سبحانہ و تعالی اپنا تعارف خود قرآن میں خود فرماتے ہیں۔ توحید کی پہچان قرآن کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، صرف قرآن ہی انسان کو، قرآن میں خود اللہ تعالیٰ اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ میں اللہ، اور میں اللہ کیوں ہوں، کیوں میری عبادت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ مثالیں دے کر فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے کیا کیا بنایا ہے۔ تو توحید کی پہچان صرف قرآن کے ذریعے سے ہوتی ہے، نہ ہی کوئی کتاب، کوئی انسان اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، جیسی کہ اللہ تعالیٰ خود اس قرآن کے ذریعے سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ توحید کیا ہے۔ اور جب انسان کو توحید پتہ چل جاتی ہے، پھر ہی اس کے اندر سے شرک نکلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کے اندر سے شرک نکلنا شروع ہوتا ہے جب اسے توحید کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اللہ نے کیا کیا بنایا ہے، اس کے بعد میں کیا پھر اس کے اندر شرک رہے گا؟ وہ کوئی درخت کو، کوئی بت کو، کوئی پتھر کو، کوئی قبر کو، کوئی تعویذ کو بڑا سمجھ سکے گا کہ یہ مجھے شفا دے سکتا ہے، یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، یہ میری مشکلیں دور کر سکتا ہے؟ اس کے اندر سے، انسان کے اندر سے خود بخود شرک نکلنا شروع ہو جائے گا۔ وہ کسی چیز کو، کوئی پتھر کو، کوئی پہاڑ کو، کوئی جھاڑ کو، کسی چیز کو اس کے برابر نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زمینی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہیں؟ آسمان پر، 7 آسمان پر، اتنے بڑے ہیں۔ تو یہ، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا ہے، وہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے، کیا جو انسان دنیا میں شرک کرتے ہیں، انہوں نے کچھ بنایا ہے، وہ کوئی دلیل ہے ان کے پاس شرک کی کہ انہوں نے کسی کو پیدا کیا ہے، زمین و آسمان میں سے کوئی حصہ ہے ان کا؟ تو جتنے لوگ بھی شرک کرتے ہیں، کیونکہ شرک کی کوئی دلیل نہیں، کوئی ان کے پاس ایگزامپل نہیں دے سکتے کہ وہ شرک کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے شرک کی۔ شرک کی صرف یہی وجہ ہے کہ ان کو توحید پتہ نہیں،
जो कब्रों के जाके आके मत्था टेक देते हैं, उसके आगे भी झुक जाते हैं। हाँ, कब्रों के भी आगे उसको भी बड़ा मान लिया, वो पीर बहुत बड़ा, वो औलाद दे देगा, वो बच्चे दे देगा, वो धागा बहुत बड़ा, वो पत्थर बहुत ठंडा। ये कब होती है इंसान के अंदर ये चीज़ें? जब उसको तौहीद ही पता नहीं है, उसको पता ही नहीं मेरा बनाने वाला कौन है। जब हमें अपने बनाने वाले की, ज़मीन व आसमान के उसने क्या क्या बनाया, ज़मीन व आसमान, समंदर, पहाड़, हाँ, हवाएं, पानी, तो ये इतने बड़े बड़े मौजज़ात हैं कि कोई चीज़ आप इसके आगे लाके खड़ी कर दें कि जिसको आप कहते हैं कि ये शिफा देती है, ये औलाद देती है, ये बच्चे देती है, तो कोई चीज़ उसके आगे ठहर नहीं सकती तौहीद के आगे। तौहीद इतनी बड़ी है, इतनी ताकत है अल्लाह की अज़मत के आगे कोई चीज़ खड़े नहीं रह सकती। और ये सारा कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान में खुद समझाते हैं अपनी ज़बान से, और कोई इसको अपनी ज़बान से समझा नहीं सकता। आप खाली कुरान की ये आयतें पढ़ें, आपको एक एक चीज़ समझ आएगी, एक एक चीज़ समझ आएगी कि देखो मैंने ये बनाया, मैंने ज़मीन, आसमान, हाँ, उसके बाद रात, उसके बाद दिन, उसके बाद फिर समंदर, उसके ऊपर पानी, उसके ऊपर कश्तियों का तैरना, उसके ऊपर फिर हवाएं, उसके ऊपर बादल, कैसे तुम्हारे लिए बारिश बरसाते हैं, उससे तुम्हारी जिंदगियां हैं, तुम्हारे जानवर उससे पलते हैं। तो क्या इंसान बुत, पत्थर, पहाड़ को उसके आगे बुला सकता है? किसी चीज़ को बड़ा समझ सकता है कि ये मुझे फ़ायदा देगा, ये मुझे औलाद देगा, ये मेरी बिगड़ी बना देगा, या ये उसके आगे चिराग लगाता है कि ये जिन शयातीन है, ये मुझे कुछ तकलीफ ना दे? तो वो इंसान कर सकता है। हर तरह का खौफ निकल जाता है, शैतानों का, इंसानों का खौफ भी निकलता है। जब हमें कोई चीज़ अमल से रोकती है तो वो क्या होती है? इंसान, लोग क्या कहेंगे मुझे? तो ये खौफ भी इंसान को कब निकलता है? जब उसको तौहीद पता चल जाती है, जब उसे एक अल्लाह की बड़ाई पता चल जाती है कि इतने बड़े रब का हुक्म है, हाँ, मैं ये छोटे छोटे लोगों की वजह से ये काम ना करूं कि ये नाराज़ हो जाएंगे, इनकी नाराज़गी को मैं देखूं, या मैं तो उस दो जहान के मालिक की नाराज़गी को, किसने मुझे ये हुक्म दिया है? तो इंसान के लिए अमल करना भी कोई मुश्किल नहीं लगता जब उसके अंदर तौहीद रासिख हो जाती है। वो किसी चीज़ को मददगार नहीं समझता कि जो करना है अल्लाह ने करना है, जो बिगड़ना है अल्लाह के हुक्म से बिगड़ेगा, और कोई अमल उसके लिए मुश्किल नहीं लगता, चाहे उसको कितने भी मुश्किलात सहाबाए किराम ने उठाई, उनको क्यों मुश्किल नहीं लगा? क्योंकि वो समझते हैं कि इससे बड़ा हमें हुक्म देने वाला कौन है। जब उन्होंने अपने हुक्म देने वाले को पहचान लिया, फिर उनको कोई चीज़ मुश्किल ना लगी। तो यहाँ ये आयत जो हैं बहुत अच्छे तरह से शिर्क की वजाहत करती हैं। आयत नंबर यानी 67 तक, आयत नंबर 67, और कहाँ से शुरू होती है ये आयत? आयत नंबर 63 से 67। ये बेहतरीन शिर्क के ऊपर ये आयत है। जो इंसान भी शिर्क करते हैं तो ये आयत के ज़रिए से आप उसको समझा सकते हैं कि अल्लाह ताला कौन है। अगर हम अल्लाह की इबादत करते हैं तो उसके पीछे हमारी एक वजह है, वजह है उसकी, और वजह ये है कि इसको बनाने वाला एक खालिक, एक मालिक है। दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते। अगर होते तो ना ज़मीन इस तरह से खड़ी रहती थी, ना समंदर इस तरह से रह सकता था, ना रात और दिन इस तरह से चल सकते थे जिस तरह से इस वक्त सुकून से चल रहे हैं। तो ये आयत 167 तक यहाँ पर ख़त्म होगी कि शिर्क करने वालों का हाल क्या होगा। शिर्क करने वाले और जिनको वो शिर्क करते थे, जिन चीज़ों का, जिसके साथ वो रब के साथ जिन चीज़ों को या जिन इंसानों को मिलाते थे, वो दोनों ही कहाँ होंगे? जहन्नम में होंगे, आग में होंगे। कज़ालिका युरीहुमुल्लाहु अमालहुम हसरातिन अलैहिम वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार। आयत नंबर 167 को देखिए। 166, इस्तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ मिनल्लज़ी, जब बेजार हो जाएंगे वो लोग जो पैरवी किए गए, मिनल्लज़ीना, उन लोगों से, अत्तबाउ, जिन्होंने उनकी पैरवी की, तो क्या होगा? वरअउल अज़ाब, जब वो देख लेंगे अज़ाब को, वतक़त्तअत बिहुमुल अस्बाब, और कट जाएंगे उनके तमाम असबाब। वक़ाला, और कहेंगे अल्लज़ीना, वो लोग, अत्तबाउ, जिन्होंने पैरवी की, यानी उनके फॉलोअर्स, उनके फॉलोअर्स अपने उनको चीज़ों को जिनको रब के बराबर मानते थे, उनसे कहेंगे लो अन्ना लना कर्रतन फनतबर्रा मिनहुम, ये काश बेशक ज़रूर होता हमारे लिए
ایک لوٹنا تو ہم بیزار ہو جاتے منہم ان سے، یعنی ایک بار ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو پھر ہم کبھی بھی شرک نہ کریں گے۔ یہاں پر کون کہیں گے؟ جو فالوورز ہوں گے، جو شرک کرنے والے لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر کہ کاش ہمیں ایک بار دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم کبھی بھی ان کو اللہ کے برابر نہیں کریں گے۔ وَنَتَبَرَّأَ مِنَّا، تو ہم بیزار ہو جائیں گے ان سے۔ كَذَلِكَ، اسی طرح يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، دکھائے گا اللہ ان کے اعمال ان کو حسرات، حسرت بنا کر، یعنی حسرت کیا ہے؟ افسوس، افسوس کریں گے اپنے اعمال کو جو انہوں نے ان کے لیے کیے ہوں گے، یعنی جو جس چیز کا شرک کرتا تھا، جو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کو راضی کرنے کے لیے جو لوگ قربانیاں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یا بتوں کے نام پر یا انسانوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اللہ ناراض ہوتا ہے ہو جائے، لیکن جب ان کے یہ سارے اعمال یوم الحساب کے دن دکھائے جائیں گے حسرت بنا کر کہ یہ اعمالوں کا ان کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ كَذَلِكَ يُرِيهُمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، جو انہوں نے ان کے لیے اعمال کیے تھے وہ ان کو افسوس اور حسرت بنا کر دکھائے جائیں گے کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیں گے آج تمہارے یہ اعمال۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہیں وہ نکالے جائیں گے، خارجینہ خرجہ کی جمع ہے، نہیں وہ نکالے جائیں گے من النار، آگ سے۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے علاوہ باقی لوگ تو نکل جائیں گے لیکن شرک کرنے والا آگ سے نہیں نکلے گا، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا۔ اللہم اجرنی من النار۔ تو اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا گناہ ہے، چاہے وہ انسانوں کے ساتھ، انسانوں کو سمجھنا اللہ کے ساتھ، یا پھر کسی چیزوں کو اللہ کے برابر سمجھنا، تو بہت ضروری ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، اللہ کے احکاموں پر چلنے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگیوں سے شرک کا نکال دینا، کہ ہر عمل، ہر عبادت، ہر صدقہ، ہر خیرات، ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، اس کے پیچھے انٹینشن ہماری کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ کی رضا۔ اللہم اصلح لشانی کلہ، اللہ میرے ہر عمل کو صالح بنا دے اور اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اس میں کسی کا کوئی حصہ نہ رکھنا۔ یہ دعا ہے جو ہمیں سکھائی گئی ہے کہ ہمیں ہر روز سب سے پہلے اٹھتے ہی یہ دعا کرنی ہے، کیونکہ اگر کسی میں چیز میں آ گیا شرک، ہم نے بڑا شرک نہیں کیا، چھوٹے شرک شروع کر دیے، اس کا بھی ہمیں پتہ لگ جائے کہ چھوٹے شرک کیا ہیں، وہ بھی ایک دن وہ ایک جمع ہو کر وہ بھی انسان کے اعمال کو غارت کر دیں گے۔ گھر کے کام اس لیے کر رہی ہوں مجھے کچھ انعام ملے گا، ماں باپ خوش ہو جائیں گے، ساس خوش ہو جائے گی، شوہر خوش ہو جائے گا، مجھے نامہ ملے گی، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا شرک ہے۔ بڑا شرک بھی ہے، بڑا شرک تو بالکل ہی نہیں کرنا، اس کو تو انسان کو سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال دینا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو شرک، ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا شرک کر رہے ہیں ہم، تو چھوٹے شرک کو بھی اسا ہی سمجھو جیسے بڑا شرک ہے، اس کو بھی اس طرح سے بچو، ڈرو، کہیں ریاکاری آ جائے، کہیں دکھاوا آنے لگے، لوگ دیکھیں گے نماز پڑھتی ہے، سر پہ گٹھا ہے، اچھا ذرا دوپٹہ پیچھے کو کر لوں، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اس کے اچھی تربیت کروں گی، یا اپنے ماں باپ کی خدمت کروں گی، لوگ کہیں گے کتنی اچھی بہو ہے، یا مجھے زمین جائیداد یا کچھ مجھے مال و دولت مل جائے گا، تو ہر طرح کا شرک اکبر بھی، شرک اکبر تو ہے ہی ہے، شرک اصغر بھی، اصغر کو بھی اپنی زندگی سے نکال دیں، یہ ایسا ہے کہ انسان کو آگ میں لے کر جانے والا ہے، وہ کبھی آگ سے نہیں نکل سکیں گے۔ جی آیت نمبر 167-8، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالن حلال، طیباً اور طیب، طیب کہتے ہیں جو چیز دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور خوش ذائقہ، اچھی کھانے میں بھی اچھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھی ہو، وہ ہے طیب، جو خوش ذائقہ ہو یعنی دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور کھانے میں بھی اچھی ہو،
जो सेहत के लिए भी अच्छी हो, खाकर जिसको आपको सेहत भी अच्छी रहे, तो जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहे, तो ऐसी चीज़ें खाओ, या ए ईमान वालों ऐसी चीज़ें खाओ जो पाकीज़ हलाल हो और साथ साथ उसके अच्छी भी हों, यानी पाकीज़ा हों, साफ़ सुथरी हों, देखने में भी अच्छी हों, शक्ल सूरत भी अच्छी हो और जायका भी अच्छा हो और तुम्हारी सेहत भी जिससे अच्छी रहे। वला और ना तत्तबिउ तुम पैरवी करो खुतवात कदमों की। इस खुतवात का रूट है खा तो वाओ, दो कदमों के दरमियान की जगह, या फिर इसको रास्ता भी कह सकते हैं कि शैतान के रास्ते की या कदमों की पैरवी ना करो। इन्नहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीन खुल्लम खुल्ला। देखिए, तौहीद की वजाहत के बाद, एक अल्लाह की मार्फत के बाद, अब हमें खाने पीने में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे, उसके बारे में अब बातचीत हो रही है। हाँ, कि तौहीद को समझाने के बाद, एक अल्लाह की पहचान करवाने के बाद, उसके बाद खाने पीने का जिक्र हो रहा है। क्यों, क्या वजह है इसकी? तौहीद के साथ उसके बाद फौरी खाने पीने का जिक्र क्यों आ गया? क्यों? क्योंकि इंसान की इबादत कबूल ही नहीं होती जब तक कि उसका रिस्क हलाल ना हो। उसकी इबादत कबूल नहीं होती, उसका कोई अमल, इस आयत के नीचे ही लिखिए कि इंसान की इबादत कबूल नहीं होती, ना उसकी दुआएं कबूल होती हैं जब तक कि उसका रिस्क हलाल ना हो। इसलिए तौहीद के फौरी कि हर अमल किसके लिए करो, अल्लाह के लिए करो, तो उसके बाद फौरी खाने पीने का जिक्र आया है। उसके बाद फौरी खाने पीने का जिक्र आया है कि उसकी शर्त है कि इंसान का खाना हलाल होना चाहिए, हलाल भी होना चाहिए और साफ़ सुथरा भी होना चाहिए, क्योंकि खाने का ताल्लुक़ इंसान के जिस्म से है, खाने का ताल्लुक़ इंसान के ईमान से भी है और उसके जिस्म से भी है। खाने का ताल्लुक़ हलाल और पाकीज़ा होगा तो फिर उसका ईमान भी बढ़ेगा और उसकी सेहत और जान भी अच्छी रहेगी। अब जब इंसान का खाना हलाल नहीं होगा तो ना तो उसकी इबादत कबूल होगी और ना ही उसकी, अगर वो पाकीज़ा नहीं यानी तैयब नहीं होगा तो ना ही उसकी सेहत अच्छी रहेगी। है या आलू है या जो वो चीज़ें खाली फ्राइड आइटम, या कोल्ड ड्रिंक हैं, सॉफ्ट ड्रिंक हैं, चॉकलेट केक्स हैं, ये अगर हमें कुरान तैयब चीज़ें पाके खाने के लिए कह रहा है, तैयब में वो तमाम चीज़ें आती हैं जो इंसान के अंदर खून पैदा करके उसके जिस्म को चलाने में मददगार होती हैं। लेकिन ये जितनी चीज़ें, जंक फूड जितना है, न्यूडल्स हैं, बर्गर्स हैं, मकरोनी है, या ये बिस्किट हैं, ये जितनी बेकरीज आइटम हैं, ये क्या तैयब है ये? या सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये जितनी चीज़ें हैं ये सिर्फ इंसान के मुंह के जायके के लिए है। पान है, बीड़ी है, सिगरेट है, ये क्या इंसान को कोई फ़ायदा देते हैं? कोई फ़ायदा नहीं देते। ये सिर्फ और सिर्फ एक जायका है, एक टेस्ट है, इसका इंसान के जिस्म को कोई फ़ायदा नहीं हो सिवाय नुकसान के। आप जितने भी चॉकलेट्स ले लें, मीठी चीज़ें जितनी ले लें, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक पीछे हमें उम्मत वसत का टाइटल दिया गया कि तुम बेहतरीन लोग हो। तुम्हें मैंने किसके लिए बनाया है? तुम काम करने वाले हो, तुम पिछलों का पैगाम अगलों तक पहुंचाने वाले हो। तुम्हें एक ड्यूटी दी जा रही है, तुम्हें एक काम के लिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है, तुम्हें उम्मत वसत कहा गया है। फिर उसके बाद में तुम्हें बनाने का मकसद, बनाने के बाद इंसान को बनाने का मकसद बताने के बाद फिर उसको एक अल्लाह की मार्फत कराई गई कि देखो तुम जो भी काम करोगे, वो तुम्हें किसके कौन सा करना होगा, जिसका तुम्हें अल्लाह हुक्म देंगे। और क्यों करना होगा? फिर उसके बाद अल्लाह की पहचान कराएगी कि देखो जो तुम्हें हुक्म दिए जा रहे हैं ये उसकी तरफ से हैं, वो मालिक इतना बड़ा है। तो अब तुम जब जो तुम काम तालीमात हासिल करोगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर तुम्हारी जान का भी हक है,
उस जान का अगर तुम हक अदा करोगे तो ही तुम एक अच्छे उम्मत मुसलमा कहला के रोल अदा कर सकते हो। उम्मत वसत का रोल अदा करने के लिए, एक अच्छा इंसान बनने के लिए इंसान की जिस्मानी ताकत भी होनी ज़रूरी है, उसकी सेहत अच्छी रहनी भी ज़रूरी है। अब अगर तुम्हारा खाना पीना ही दुरुस्त नहीं होगा तो फिर तुम क्या दीन उम्मत वसत के किस काम में क्या मदद कर सकोगे, क्या तुम कर सकोगे, वो रोल अदा कर सकोगे जब इंसान के अंदर खुराक ही सही नहीं जा रही है। हाँ, जब खुराक अच्छी जाती है तो उसकी सेहत अच्छी रहती है, उसका दिमाग, उसका दिल, उसका जिस्म, हर चीज़ सही काम करता है। लेकिन जब खुराक अच्छी नहीं जाती तो उसका जिस्म क्या हो जाता है, बेमकसद बेमाना मुर्दा जिस्म हो जाता है, उसके अंदर की ताकत ख़त्म हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। हाँ, किसी मरीज़ को, बीमार को जब वो होता है उसको हर बेफजूल चीज़ खाने से रोक दिया जाता है और अच्छी ग़िज़ा दी जाती है। क्यों? ताकि ये उठने बैठने के काबिल हो जाए। तो उम्मत वसत का अगर तुम्हें रोल अदा करना है, इस काम को तुमने दीन को सीखना है, तुम एक बामकसद इंसान हो, तुम्हें अल्लाह ने यहाँ पर खाली ऐशो इशरत के लिए नहीं भेजा, खाने पीने के लिए ही नहीं भेजा कि तुम सिर्फ अपनी ज़बान ही देखो, अपनी ऐशो इशरत देखो। उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ें समझाई कि देखो, जब तुम उम्मत वसत का रोल अदा करोगे, तुम लोगों को दीन का पैगाम सिखाओगे या सीखोगे, तुम्हें भूख भी बर्दाश्त करनी होगी, तुम्हें बहुत से नुकसानात भी इससे गुजरना होगा। तो वो सारे पीछे तस्करे गुजर चुके हैं। पीछे सब अल्लाह ताला समझा चुके हैं हमें कि क्या क्या तुमको उन कैटेगरी से गुजरना होगा। अब फिर अल्लाह ताला यहाँ पर खाने पीने पर आ गए। इसलिए यहाँ पर खाने पीने को तरजीह दी गई है कि हलाल भी होना चाहिए, तैयब भी। हलाल कहकर काफ़ी नहीं है कि हलाल खाओ, मुर्दार ना हो, हाँ, खंजीर ना हो, नहीं, बल्कि हलाल भी हो और उसके साथ साथ वो तैयब भी हो। तो तैयब हर वो चीज़ खानी है जो इंसान को उसके मदद दे, उसके कामों में उसको मदद दे, और हर उस चीज़ से रुकना है जिससे इंसान के अंदर सिर्फ वहशी ख्वाहिशात पैदा होती हैं। क्योंकि जब इंसान अच्छी ग़िज़ा खाता है उसके अच्छी सोच डेवलप होती है, हाँ, उसके अंदर अच्छी चीज़ें, हमारा उससे खून बनता है। हलाल चीज़ें खाते हैं तो खून बनता है, उसी तरह से हमारे जिस्म के एज़ा चलते हैं, आँखें देखती हैं, कान सुनते हैं, दिमाग चलता है। तो जितनी हम इसमें अच्छी ग़िज़ा डालेंगे ये चीज़ें उतना अच्छा काम करेंगी। हाँ, इस तरह से अब आप गाय भैंसों को जितनी अच्छी ग़िज़ा खिलाते हैं वो उतना अच्छा प्रोडक्शन आपको देती हैं। लेकिन अगर ग़िज़ा अच्छी नहीं तो क्या उनके दूध में या जो वो फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, क्या उसमें कोई फ़ायदा होता है? तो इसी तरह से अगर आप जंक फूड खाएंगे, बेमकसद बेफजूल चीज़ों से अपना पेट भरने के आदी हैं, बर्गर, बाज़ार का रेडीमेड खाने के कहाँ पकाएंगे, तो क्या तुम उम्मत वसत का रोल अदा कर सकोगे? क्योंकि उसके लिए एक अक्लमंद इंसान की ज़रूरत होती है। बाशऊर इंसान आगे ये काम कर सकता है, आगे पहुंचा सकता है। लेकिन जिस इंसान का खाना पीना ही दुरुस्त ना हो तो वो इंसान, क्या उसकी अकल, क्या उसकी समझ, क्या उसके मुकाबले में वो कैसा इंसान वो कर सकता है वो काम? तो इसलिए यहाँ पर हलाल के साथ तैयब कहा गया है। और उसके बाद कहा गया है वला तत्तबिउ, और ना तुम पैरवी करो खुतवात शैतान, कदमों की शैतान के। कदमों के शैतान से मुराद क्या है? खुतवात शैतान से मुराद क्या है कि हलाल हराम के मामले में इंसान सिर्फ अल्लाह की बात माने, शैतान के कदमों की पैरवी ना करे। शैतान के कदमों की पैरवी यानी सूद खाना, इंटरेस्ट लेना या देना, या लेना या देना, दोनों चीज़ें भी हैं। और इसी तरह से हर वो हराम कमाई के ज़रिए जिसको अल्लाह ने मना किए हैं, शराब नोशी के ज़रिए से, हाँ, जिस यानी उसका कारोबार करना या कोई और ऐसे कारोबार करना, हाँ, नशे की चीज़ों के कारोबार करना, तो कदमों के पैरवी ना करो खुतवात शैतान की, कि ऐसे हराम कोई भी तरीके या कोई भी हराम तरीके से ऐसा माल ना कमाओ जिससे अल्लाह ने मना किया है। इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन मुबीन, खुला दुश्मन है। आयत नंबर 169, इन्नमा, बेशक,
यअमुरुकुम वो हुक्म देता है तुमको, कौन? शैतान। बिस्सू बुराई का, सीन वाव हमजा इसका रूट है। सू कहते हैं हर किस्म की बुराई। वल फहशा और बेहयाई, फहशा फाहाशी फहश, फहश है यानी खास किस्म की बुराई, यानी सू कह ले छोटा गुनाह और फहशा बड़ा गुनाह। शैतान जो है वो तुम्हें हर छोटे और बड़े दोनों ही किस्म के गुनाहों का तुम्हें हुक्म देता है कि देखो शैतान के पीछे न चलना। वअन और ये कि तकुलू तुम कहो, अलल्लाही अल्लाह पर, माँ जो ला नहीं, तालमुन तुम जानते, और ऐसी बात अल्लाह के बारे में कहना कि जो तुम्हें पता ना हो, यानी तुम्हें खुद पता ना हो वो बात अल्लाह के बारे में कहना। देखिए खुतवात शैतान जो हैं, शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, वो तुम्हें बुराई का और बेहयाई का हुक्म देता है कि वो तुम्हें बुराई और बेहयाई का हुक्म देता है, यानी हर किस्म की जो बुराई है जो इंसान को उसके दिमाग में डालता है, सूद चलो कोई बात नहीं थोड़ा सा है खा लो, यानी हराम को हलाल, हलाल को हराम बनाकर पेश कर देता है। इंसानों को ऐसा उनके माइंड सेट कर देता है कि उनको बुराई बुराई नज़र नहीं आती, ऐसा उनका माइंड सेट कर देता है, और वो बातें कहने लग जाता है जो अल्लाह ने कुरान में कही ना हो। तो इंसान वो बातें कहने लग जाता है जो अल्लाह ने कुरान में कही ना हो। और ये कब होता है? जब इंसान कब ऐसा करता है कि वो बातें कहता है जो अल्लाह ने ना कही हो। अल्लाह पर ऐसी बातें इंसान कब कहता है? जब उसका खाना हराम हो और उसको कुरान की समझ ना हो, जब उसको पता ना हो कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या क्या हुक्म दिए हैं, और उसका खाना भी जब हलाल ना हो, तैयब ना हो, पाकीज़ा ना हो, तो इंसान हर वो बात कह देता है जो अल्लाह ने कही नहीं होती। हराम को हलाल कर देता है, हलाल को हराम कर देता है। वइज़ा और जब 170 और जब क़ीला कहा जाता है लहुम उनके लिए, अत्तबिउ के पैरवी करो, माँ जो अनज़ला उतारा, अल्लाहु अल्लाह ने, क़ालू वो कहते हैं, बल्कि नत्तबिउ हम पैरवी करेंगे, माँ जो अल्फ़ैना जो पाया हमने, अल्फ़ैना लाम फाव वाव इसका रूट है, लाम फा वाव, जो हमने पाया यानी इत्तफ़ाक़न कोई चीज़ को पाना, या फिर पर्दा हटने पर किसी चीज़ को पाना। इत्तफ़ाक़न यानी अचानक, बाय चांस, इत्तफ़ाक़न किसी चीज़ को पाना, या फिर पर्दा हटा और एकदम आपने कोई चीज़ आप ढूंढ रहे थे तो अचानक आपने कोई चीज़ हटाई और पीछे से आपको वो चीज़ मिल गई जो आप ढूंढ रहे थे। तो बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना, बल्कि हम तो पैरवी करेंगे उसकी जो पाया हमने, जिस पर पाया हमने, अलैहि उस पर, आबा आना अपने आबाओ अजदाद को, यानी अपने बाप दादा को जिस पर पाया हम तो वो करेंगे। अवलो क्या भला, आ क्या, वलो भला, या अगरचे क्या भला, काना हो आबाउहुम उनके आबाओ अजदाद या उनके बाप दादा, ला याकिलून ना अक्ल रखते, शयन किसी भी चीज़ की, वला और ना, यह तदून वो हिदायत याफ्ता हों। अब यहाँ पर उस इंसान का या उन लोगों का हाल बताया जा रहा है कि जो यानी कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो जब उनसे कहा जाता है वइज़ा क़ीला लहुम अत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु, कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अल्लाह ताला ने तो ये मना किया है, ये हराम है, या ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है, कि जब उनसे कहा जाता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तो अमल करना नहीं चाहिए, अल्लाह इससे नाराज़ होते हैं, तो फिर वो लोग क्या कहते हैं, मा अंज़लल्लाहु जो अल्लाह ने उतारा नहीं है, यानी कुरान और सुन्नत से जो साबित नहीं, तुम वो अमल कर रहे हो, क्यों ये अमल कर रहे हो, ना करो ये अमल, अल्लाह इससे नाराज़ होते हैं। तो कालू वो कहते हैं, कौन? जो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं।
बल नत्तबिउ मा अल्फैना, बल्कि हम तो पैरवी कर रहे हैं मा अल्फैना, जिस पर हमने पाया अलैहि आबाउना, हम तो अपने बाप दादा को जिस पर पाया हम तो वो कर रहे हैं। यानी अगर आबाओ अजदाद का तरीका ऐसा है कि वो कुरान और सुन्नत से मैच नहीं होता या अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं है, तो वो तरीका भी इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा, उस पर भी नहीं हम चल सकते। ये कहकर कि ये तो मेरे बाप दादा, मेरी सास शुरू से वो रस्म करते आई है, उसने फातिहा दिलाई है, या उसने तैयार, या उसने ये हमारे ख़ानदान में चलते हुए आ रहा है, कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो दुनिया परस्त लोग होते हैं या जो कुरान और सुन्नत पर जिनका उनको पता नहीं होता उसके ख़िलाफ़ ज़िंदगी गुजारने वाले लोग होते हैं, कि बाज़ लोग उनमें से ऐसे होते हैं कि जब आप उनको समझाते हैं कि भाई ये करना रस्म रिवाज इस्लाम में नहीं है, तो बाज़ लोग तो होते हैं कि बस उनके कह पूरी मान जाते हैं कि अच्छा हमें पता नहीं था, हम आपसे नहीं करेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप उनको कहते हैं भाई ये कुरान ख़वानी करना, ये रस्म रिवाज करना, हाँ ये मेहंदियाँ करना, ये सेहराबंदियाँ करना, ये क्या है, ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह ताला ने आप कुरान में इससे मना फरमाया है, ये रस्म रिवाजों को अल्लाह ने ख़त्म किया है हमारे नबी ने आकर। तो फिर वो क्या कहते हैं, नहीं भाई हम तो वही करेंगे हमारे बाप दादा जो करते आए हैं, या हम तो वैसे तरीके से नमाज पढ़ेंगे जैसे हमारे बाप दादा को पता नहीं था। तो यहाँ पर उन लोगों का हाल बताया जा रहा है कि जो समझाने पर भी क्या अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि क्या कह देते हैं, हमारी सास करती थी मैं तो इसलिए करती हूँ, मेरे ख़ानदान में ये रस्म चलती आ रही है, अब मैं कुंडे कैसे ना करूँ, मेरी तो सास करते आ रही थी, मुझे तो कुछ उलट हो जाएगा मेरे ऊपर। होते हैं ना बाज़ लोग ऐसे। तो ये कहना क्या है, ये कम अक्ली की निशानी है कि जब उनसे कहा जाता है इत्तबिउ मा अंज़लल्लाह, कि अल्लाह ने जो उतारा है कुरान और सुन्नत के ज़रिए से, हाँ उस पर अमल करो। तुम ये क्यों कर रहे हो अमल जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल नहीं किया, या अल्लाह का हुक्म नहीं, अल्लाह के रसूल का तरीका नहीं। तो कालू बल नत्तबिउ मा अल्फैना अलैहि आबाना, तो वो उल्टा क्या जवाब देते हैं, हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, हम नहीं ये कर सकते। अवलो काना, अब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि क्या भला अगर काना हो आबाउहुम, उनके आबा अजदाद, उनके बाप दादा, ला याकिलून, कि अगर वो अकल न रखते हों। अब यहाँ इनसे क्या मुराद है, अकल न रखते हों, कि हो सकता है तुम्हारे बाप दादा आबाओ अजदाद बेचारे इल्म जानते ही नहीं थे, हाँ इल्म उनके पास था ही नहीं, और उस ला इल्मी की वजह से वो ये अमल करते थे। लेकिन अब तुम्हारे पास तो इल्म आ गया है ना, अब हमारे पीछे जो बाप दादा गुजरे हैं, क्या हमारे माँ बाप के भी दौर में आप 20-25 साल पीछे चले जाएं, कहाँ इतना इल्म था, कहाँ इतनी किताबें थी, कहाँ इतने लेक्चर होते थे, हाँ। लेकिन अब अगर वो बेचारे लाइल्मी की वजह से कोई रस्म रिवाज या गलत तरीके, कोई फातिहा दरूद, कोई दरगाहों पर जाते भी थे, हाँ, लेकिन अब जब के इल्म आ गया, हाँ, अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया, तो फिर तो तुम्हें वो चीज़ों को छोड़ना चाहिए, वो रस्मों को छोड़ना चाहिए, हाँ। हो सकता है तुम्हारे आबाओ अजदाद को पता नहीं था, हो सकता है उनको पता लग जाता और वो छोड़ देते, लेकिन अब तुम्हारे पास तो अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी दे दी, आज मीडिया का दौर है, हर इंसान को इल्म सीखना बहुत आसान हो गया है, और तुम्हारे पास किताबें भी पड़ी हुई हैं, तो फिर तुम तो पता चल गया, तो तुम्हें तो ये अमल छोड़ना चाहिए, हाँ। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं अवलो काना आबाहुम ला याकिलूना शैया, कि अगर तुम्हारे आबाओ अजदाद को पता नहीं था कुछ भी, वला यहतदून, और वो हिदायत याफ्ता न थे, हाँ, उन सबको इन चीज़ों को समझने की हिदायत नहीं मिली थी, तो फिर तुम उनके पीछे क्यों चल रही हो। अब इस आयत से हमारे लिए क्या सबक है कि जब इंसान को कुरान और सुन्नत से कोई बात मिल जाए, फिर ये कहकर उसको रद्द कर देना कि ये तो हमारे ख़ानदान की रस्म है या हमारे माँ बाप का तरीका है। कुरान और सुन्नत जब इंसान को पता चल जाए, ऐसा करने से अल्लाह ताला यहाँ इस आयत में मना कर रहे हैं कि कुरान और सुन्नत की जो तुम्हें जब दलील के साथ कोई बात मिल जाए, फिर उसके ऊपर अपनी दलील को तरजीह ना दो, या बाप दादा के दीन को फिर तरजीह ना दो।
پھر اس کے اوپر باپ دادا کے دین کو یا اپنے خاندان کی رسموں کو ترجیح نہ دو جب تمہیں قرآن اور سنت سے دلیل مل جائے۔ اللہ کے مقابلے میں باپ دادا کے طور طریقوں پر چلنے سے یہاں پر منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں باپ دادا کے طور طریقوں پر چلنے سے یا چلنے کا بیان ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے شیطان کے قدموں کی پیروی ہے۔ ایسا کرنا بھی کیا ہے؟ شیطان کے قدموں کی پیروی، کیونکہ شیطان ایک مائنڈ میں سیٹ کر دیتا ہے، نہیں یہ رسم تو میری دادی کرتی تھی، یہ تو میری ماں کرتی تھی، یا یہ تو میری ساس کرتی تھی، کتنا اچھا لگے گا اگر یہ میں بھی کروں گی۔ ہم بعض بیٹے کہہ دیتے ہیں یا بعض بیٹیاں یا بعض بہویں، تو اس طرح کا کہنا بھی، یہ ایسے عمل کرنا بھی کیا ہے؟ خطوات الشیطان میں آتا ہے۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کمثلی، مانند مثال، یعنی جیسے کہ مثال، الَّذِينَ، ان شخص کے، ینعقو، جو پکارتا ہے، ینعقو، نون عین کاف، نعق سے ہے، گلا پھاڑ کر چلانا، یا پھر چرواہے کا چلانا، اور چلانے والی آواز جو بلندی سے، بلند آواز سے چلائے، وہ نعق کہلاتی ہے۔ الذین ینعقو، اس شخص کو پکارتا ہے، بما سا، اس کے جو، لا نہیں، یسمعو، سنتا، الا، سوائے اس کے، دعا، پکار، یعنی دعا کا معنی یہاں کیا ہے؟ پکار سے ہے، وَنِدا، اور آواز، ندا کا روٹ نون دال یا، اور اس کا معنی ہے وہ آواز یا وہ پکار جو بے مقصد ہو۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں، فہم، تو وہ، لا یعقلون، عقل نہیں رکھتے۔ یعنی اس آیت میں ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے بزرگوں کے دین کو یا اپنے بزرگوں کے طریقوں کی یا اپنے خاندان یا رسموں کی، اپنے خاندان یا رسم و رواجوں کو آنکھیں بند کر کے اپنایا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے اس آیت میں جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کو یا پھر اپنے خاندان یا رسم و رواجوں کو آنکھیں بند کر کے اپنایا ہوا ہے، اور اتنے اندھے ہیں وہ اپنے، یعنی ایسا اندھا دھند چل رہے ہیں وہ ان رسموں پر، ان طریقوں پر، کہ اگر کوئی انہیں پکارنے والا پکار کر کہتا بھی ہے، ارے بھائی یہ مت کرو، یہ اسلام میں نہیں ہے، اگر کوئی پکارنے والا ان کو پکار کر کہتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، لیکن وہ سن کر بھی انسنے جیسا ہیں، سن کر بھی انسنے جیسا ہے کہ جیسے ان کو سنائی ہی نہیں دیتا، سن کر انسنی یعنی ان کو سنائی ہی نہیں دیتا۔ اور ایسے لوگوں کی مثال یہاں پر جانوروں کے ساتھ ان کو مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال کیا ہے؟ جانوروں کے جیسی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن میں کئی جگہ آپ کو مثال ملے گی کہ ایسے لوگ جو اندھا دھند اپنی زندگی میں اپنے رسم و رواجوں پر یا جس طرح سے زندگی کے طور طریقے ہیں قرآن اور سنت کے خلاف بس چلتے رہتے ہیں اور ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے دین کی، قرآن کی، سنت کی، تو ان کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کتنی جگہ جانوروں سے دیتے ہیں کہ جو جانور کیا ہے؟ اپنی عقل کا استعمال نہیں کرتا۔ تو وہ بھی لوگ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح سے ایک جانور ہیں، تو ان کی مثال یہاں پر جانوروں سے دی گئی ہے کہ جو آواز تو سنتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ پکارنے والا کیا پکار رہا ہے۔ جانور سنتا ہے نا آواز، لیکن اس کو سمجھ آتی ہے آواز، آپ کیا کہہ رہے ہیں اسے، آپ اسے کہیں ہٹ جاؤ اس کو سمجھ آئے گا، آپ اسے کہیں بیٹھ جاؤ سمجھ آئے گا نہیں، لیکن کانوں کو آواز ضرور اس کے جاتی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اس لیے وہ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو سمجھ کچھ نہیں آتا ہوتا، اس کے کانوں سے صرف آواز ٹکرا سکتی ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی دی جا رہی ہے جو اندھا دھند رسموں رواجوں میں دنیا کے فندوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جب ان کو کوئی سکھانے والا سکھاتا ہے، سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے تو بس وہ سنتے ہیں صرف، لیکن ان جانوروں کے جیسے ہیں کہ جن کو سمجھ کچھ نہیں آتا لیکن عمل کچھ نہیں بدلتا ان کا، اسی طریقے پر چلتے جاتے ہیں۔ تو ان کی مثال یہاں پر ایک
जानवर से दी गई है। दोबारा से इस आयत को देखिए, वमसलुल्लज़ीना कफ़रू, और मिसाल उन लोगों की जिन्होंने कुफ़र किया, कमसलिल्लज़ी यनइक़ू, उस शख्स की जैसी है जो पुकारता है, बिमा ला यस्माऊ, उसको नहीं जो सुनता, यानी वो पुकारता है कोई पुकारने वाला लेकिन उसको सुनाई नहीं देता, इल्ला दुआ, सिवाय इसके कि वो एक आवाज़ है, बस एक आवाज़ है लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा कि ये मुझे क्या कह रहा है, वह निदा, और एक आवाज़ है, वह सुम्मुन बुकमुन। अब अल्लाह सुब्हाना ताला इन लोगों के बारे में फरमा रहे हैं कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, उम्मीउन और अंधे हैं, फ़हुम ला याक़िलून, और ये अकल नहीं रखते, यानी अकल का, अपनी अकल का सही इस्तेमाल ना करना, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल ना करना, और अपनी अकल का जहाँ इस्तेमाल करना हो, यानी कुरान और सुन्नत को समझने में अपनी अकल को ना लगाना, इंसान को जानवर के मुतशाबे बना देता है। यानी अपनी अकल का सही इस्तेमाल ना करने वाला शख्स, उसकी मिसाल कैसी हो जाती है कि जिस तरह से जानवर की मिसाल है। आपने देखे हैं कभी जानवरों के झुंड को चलते हुए? कैसे चलते हैं वो? जिधर को एक गया उधर कोई दूसरा उड़ जाएगा, जहाँ से एक छलांग मारेगा दूसरा भी वहीं से छलांग मार लेगा, जहाँ एक गिरा दूसरा भी वहीं जाके गिरेगा। तो यही मिसाल है इन लोगों की, जो अपनी अंधाधुंध तकलीद करते हैं माँ बाप के दीन की, या अपने आबाओ अजदाद के दीन की, या अपनी कम्युनिटी बरादरी। बस कहते हैं ना, हमारी बरादरी में तो ऐसा ही देते हैं, हमारे तो लड़की को ऐसा ही विदा किया जाता है, हमारे तो रिश्ता ऐसा ही करते हैं, हमारे तो ये रस्म ऐसा ही अदा की जाती है। तो ये भी क्या है? रस्म व रिवाज की तकलीद। यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि जो अंधाधुंध रस्म व रिवाजों को अपनाते हैं, जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बातें हैं, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया हो, या जिसमें कुरान में जिसकी कोई दलील ना हो, तो ऐसे अमल करना, तो उसके बगैर इंसान क्या है, अगर अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं करता, और उसके अलावा इंसान आँख, कान और अपनी आँखें और अपनी ज़ुबान और अपने कान रखते हुए भी क्या है, गूंगे हैं, बहरे हैं, बोले हैं, वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये तीनों नेमतें हमें किस लिए दी हैं? इसको किस लिए दिया है अल्लाह ताला ने? हमें अल्लाह ताला ने इसके साथ एक कुरान दिया है, एक किताब दी है। दुनिया में इंसान को बनाकर भेजने के बाद, जब आदम अलैहिस्सलाम को भेजा था, उसके भेजने के बाद अल्लाह ने क्या कहा था कि जाओ तुम ज़मीन पर, और इसके बाद जो हमारी तरफ से यानी अहकामात आएंगे उनकी पैरवी करना। यानी अल्लाह ताला ने इंसान को भेजने के बाद रहनुमाई करने के लिए, उसको सही रास्ता दिखाने के लिए क्या भेजी? अल्लाह ने किताबें भेजी, अहकामात भेजे, ताकि उनको सुनकर, देखकर, बोलकर, समझकर इंसान उन अहकामात पर चले। यानी ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हमें ज़ुबान, कान, आँखें, ये बहुत अहम है तीनों चीज़ें। ये हमें किस लिए मिले हैं? अल्लाह ताला की किताब को पढ़ने के लिए, अल्लाह की कलाम को सुनने के लिए, अल्लाह की कलाम को समझने के लिए। और अगर हम इसका इस्तेमाल अल्लाह के दीन के लिए नहीं करेंगे और बाकी तमाम चीज़ों के लिए करेंगे, तो हमने इनका हक़ अदा नहीं किया। ये अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं, और अल्लाह ने इनको कहाँ चलाना है वो भी हमें बता दिया। क्यों? अगर ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं, अगर किसी के पास कान नहीं है, उसका हिसाब नहीं होगा। अगर इसके पास ज़बान नहीं है तो भी उसका हिसाब नहीं होगा, ज़बान का हिसाब नहीं होगा। अगर किसी के पास आंखें नहीं, अंधा नहीं, तो उसकी आंखों का फिर उससे हिसाब नहीं होगा। अब जो नेमतें वाला है उससे सब पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्या पूछा जाएगा? दुनिया के बारे में, कैसे शादी की, कैसी रस्में की, कहाँ कहाँ गए? नहीं, बल्कि ये पूछा जाएगा, क्या कुरान को पढ़ा, समझा, सुना, अमल किया? अब ये अगर जिस्म के हिस्से होंगे तो ही इंसान सुनेगा, पढ़ेगा, देखेगा, तो ही अमल करने के काबिल होगा ना। तो जो इंसान अल्लाह ताला की नेमतों का सही इस्तेमाल नहीं करता, कुरान को जो अल्लाह ताला ने उसको पढ़ने के लिए कहा वो नहीं पढ़ता, जो सुनने के लिए कहा नहीं सुनता,
जो देखने के लिए कहा कुरान को नहीं देखता, तो फिर उसकी मिसाल अल्लाह के नज़दीक क्या है? जानवरों के जैसा है। जानवरों को भी कान मिले हैं, ज़ुबान मिली है, आँखें मिली हैं, लेकिन बेमकसद हैं, कोई फ़ायदा नहीं उसका। वो होकर भी क्या हमारे जैसा समझ सकता है? उसको कुछ भी नहीं है वो ये चीज़ें, सिर्फ इतना कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है, बस उतना फ़ायदा है, उसके बाद उसके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसे ही वो इंसान भी हैं कि जो दीन से लाताल्लुक़ हैं, कुरान से लाताल्लुक़ हैं, वो भी बस ये है कि इन आँखों, कानों से, मुँह से अपने लिए अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के पास क्या है? अल्लाह के पास, उनके पास कुछ भी नहीं। जब इनसे पूछोगी आँखों से, ज़ुबान से, कानों से, तो सुम्मुन बुकमुन उम्युन, यानी जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें ये इस्तेमाल करने के लिए अक़ल दी, ज़ुबान दी, कान दिए, आँखें दिए, जब इंसान उसको वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करता, तो फिर वो सारी चीज़ें क्या हैं? इंसान के लिए बेमकसद, बेमाना है और उस जानवर के जैसी हैं कि जो ये चीज़ें रख कर उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाता। लेकिन हम इंसान जो हैं, अक़ल, समझ, इसके ज़रिए से कितना फ़ायदा उठाते हैं कि हम दुनिया में भी कामयाब होते हैं। हाँ, एक अच्छे इंसान इसको, कुरान को समझकर इसका फ़ायदा सही उठाकर, और आखिरत में भी हमारे लिए क्या है? अजर व सवाब, बेहतरीन नेमतें हैं। तो इंसान बनिए, हैवान मत बनिए इस कुरान को छोड़कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो जो ईमान लाए हो, कुलू खाओ, मिन तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम, जो रिज़्क़ दी हमने तुमको, वशकुरू, और शुक्र करो, इलिल्लाहि, अल्लाह के लिए, इन कुंतुम, अगर हो तुम, इय्याहु, सिर्फ़ उसी के लिए, ताबुदून, इबादत करते। यानी अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर फिर ईमान वालों से खिताब कर रहे हैं। अब यहाँ पर हलाल नहीं बल्कि क्या है? तय्यब है कि तय्यब, तय्यबात, तय्यबातुन की जमा है। यानी तय्यब जो है, तय्यब चीज़ें खाओ, पाकीज़ा चीज़ें खाओ जो हमने तुमको रिज़्क़ दिया, और वशकुरू, शुक्र करो। और शुक्र क्या होता है? इतराफ़े नेमत, अल्लाह की नेमतों को याद करके उसका शुक्र अदा करना, इतराफ़े नेमत, यानी अल्लाह की नेमतों पर भी इंसान को इतराफ़ करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, उसका ज़िक्र करना चाहिए। जैसे पानी पीकर क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, पीने से पहले बिस्मिल्लाह, खाना खाकर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमाताना, अतामनी हाज़ा रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। तो अब कपड़ा पहनकर क्या है? शुक्र, उसकी भी दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। हाँ, तो अल्लाह की नेमतें, दूध पीकर भी दुआ है। तो अल्लाह की जो भी तुम नेमतें खाओ, पाकीज़ा खाओ, हाँ, साफ़ सुथरी खाओ, गली सड़ी ना खाओ, ऐसी चीज़ें ना खाओ जो तुम्हारी सेहत को फ़ायदा ना दें, जो तुम्हारी अक़ल के लिए, कानों के लिए फ़ायदेमंद ना हो, तो ऐसी तमाम चीज़ों को छोड़ दो, अच्छी चीज़ें खाओ। हाँ, जैसे जो इंसान को नुकसान, यानी नुकसान तो नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं, तो लिहाजा कोल्ड ड्रिंक है, जो मैंने पीछे चीज़ें बताई हैं, चॉकलेट्स हैं, ब्रेड हैं, बर्गर हैं, या जो भी फ्राइड आइटम है, तो ये सिर्फ़ एक मुँह के ज़ायके लिए है, लेकिन इंसान को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसी तमाम चीज़ों को छोड़ दो, तय्यब चीज़ें खाओ जो देखने में भी अच्छी हों, ज़ायके में भी अच्छी हों, और उसको खाकर फिर तुम मेरा शुक्र अदा करो। यानी इंसान को नेमतों को इस्तेमाल के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का यानी हक़ बनता है कि हम उसका शुक्र अदा करें। हाँ, उसकी नाशुक्री है कि इंसान खा के दस्तर पर से उड़ जाए, ना अल्लाह का ज़िक्र करे, ना उस पर शुक्र करे। हाँ, तो ये क्या है? चीज़ों की नाकदरी। जिस तरह से हम कोई चीज़ पकाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, और फिर क्या चाहते हैं कि तारीफ़ की जाए। अगर कोई तारीफ़ नहीं करता तो हमें कितना बुरा दिखता है। मैं तो सारा दिन सुबह से पका रही थी, तारीफ़ नहीं की। अब उस रब को देखें, हमने तो एक डिश बनाई, घर में सारा कुछ पड़ा हुआ था, उसने हमारे लिए कहाँ कहाँ से प्रोवाइड की सारी चीज़ें। हाँ, कहाँ से प्याज भेजा, कहाँ से लहसुन भेजा, कहाँ से कपड़ा भेजा, जितनी किचन में चीज़ें पड़ी हैं सारी की सारी देखा करें और सोचा करें, ये कौन उठा कर लाया होगा, ये दालें कौन उठा कर लाया होगा, ये पानी कहाँ से आया होगा। ये जितनी नेमतें हैं, तभी शुक्र करेंगे ना जब उसका एहसान मानेंगे कि मैं तो अपने घर में जाके एक सौदा भर कर ला कर चाहती हूँ,
मेरी तारीफ़ हो, हाँ, बच्चे मेरी तारीफ़ करें, मैं इतना सौदा इकट्ठा कर कर लाई हूँ, मैंने इतनी मेहनत से पकाया है, तो क्या वो रब का हक नहीं बनता कि हम हर नेमत पर, चाहे पहने, चाहे खाएं, चाहे पिएं, उसका शुक्र करें। और शुक्र हम ज़बान से भी करें, और शुक्र हम ज़िक्र यानी अल्लाह का ज़िक्र कर कर भी करें, और शुक्र हम इबादतों से भी करें, ज़्यादा कसरत से। अब जब अल्लाह तुम्हें इतना अच्छा खिला रहा है, पहना रहा है, अल्लाह तुम्हें इतना अच्छा रख रहा है, अब तुम्हारा भी फ़र्ज़ क्या बनता है कि तुम खूब नमाज़ें पढ़ो, उसके साथ साथ अल्लाह के आगे खूब रुकू सिजदे लंबे लंबे करो, और उसके साथ साथ नफली इबादतें भी करो, तहज्जुद पढ़ो, शुक्र, और उसके बाद वज़ू के नफल पढ़ो, इशराक पढ़ो, चाश्त पढ़ो, यानी इबादत से भी उसका शुक्र अदा करो। हाँ, उठते बैठते भी सुबह शाम भी उसका जिक्र करो, फ़र्ज़ों के बाद भी उसका जिक्र करो, और इसी तरह से चलते फिरते भी उसका जिक्र करो, और उसके बाद खाकर, पहनकर, पीकर हर चीज़ पर उसका शुक्र अदा करो, और तो ही उस मालिक का हक अदा होता है। वरना हम जब इंसान राज़ी नहीं होते कि उसका शुक्र नहीं किया गया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ना हमसे कभी कुछ कहते ही नहीं हैं, लेकिन इन समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमा रहे हैं, कुलू मिन तय्यिबात, खाओ पाकीज़ा चीज़ों में से, मा रज़क़नाकुम वशकुरू लिल्लाह, और अल्लाह के लिए शुक्र अदा करो। अब शुक्र में हर चीज़ लिख लीजिए, यानी शुक्राने में, शुक्र के नेमत में झुकना भी है, इबादत भी है, ज़ुबान से ज़िक्र भी है, और इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर हो तुम सिर्फ उसी की ताबेदारी करते या तुम इबादत करते, यानी अगर तुम ये समझते हो कि ये सारी नेमतें अल्लाह ने मुझे दी हैं, तो फिर तो इसका हक बनता है कि तुम उसको शुक्र भी अदा करो। अगर हम अल्लाह ताला की नेमतें तो पाते हैं, लेकिन शुक्र अदा नहीं करते, शुक्र कम करते हैं, ना शुक्री ज़्यादा करते हैं, हाय एसी नहीं है, हाँ हम तो पंखों में ही बैठे हैं, हाँ, या फिर हमारे पास तो घर इतना छोटा सा है, लोगों के पास इतने इतने बड़े घर हैं, यानी नाशुक्री तो हमें याद रहती है, कमियां तो याद रहती हैं, लेकिन जो नेमतें मिल गई हैं वो हमें एहसास नहीं रहता। हाँ, तो लिहाजा जो तुम्हें नेमतें मिली हैं, अगर तुम वाकई समझते हो कि तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें दी हैं, तो फिर उसका हक बनता है कि उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करो। और शुक्र सबसे पहले इबादत, उसकी नमाज को 5 वक्त नमाज पढ़ो, वक्त पर पढ़ो, फौरी अज़ान होते ही ये भी शुक्र है कि सब काम छोड़ दो, अल्लाह अकबर होते ही फौरी खड़े हो जाओ उसकी इबादत के लिए, हर काम अपने हाथ से छोड़ दो। तो ये भी उसके शुक्र का बेहतरीन तरीका है कि वक्त पर नमाज अदा की जाए, बेहतरीन वज़ू बनाया जाए, अपने काम काज बिल्कुल लपट देने चाहिए, ख़त्म कर देने चाहिए, नहीं अब मुझे अल्लाह के सामने हाजिर होना है, क्योंकि उसका हक है ना, उसका हक बनता है। अगर हम उसको हक नहीं देंगे तो हम बंदों का हक क्या देंगे? जो इंसान अल्लाह का हक नहीं देता तो कभी बंदों का हक नहीं देगा, कभी माँ बाप का हक नहीं देगा। तो अल्लाह का हक जब समझेगा वो सबका हक अदा करेगा। तो इन कुंतुम ताबुदून, अगर तुम वाकई उसकी इबादत करते हो। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा